Pastor Charles and I are very happy to be invited back into this place. पादरी चार्ल्स और मैं यहाँ इस जगह पर दावत लाने के लिए खुश हैं। I sense the presence of God in His house. Praise God, खुदावंद की हजूरी महसूस करता हूँ मैं यहाँ। I'm telling you, I wish I could get the words of the last song. Tell you, say, I like that. अच्छा, ये कहते हैं मुझे ये बहुत खूबसूरत पसंद है, लेकिन बात है ये पास्टर बड़ा अच्छा गाते ने ते पास्टर जवेद साहब ने ना बड़ा जबरदस्त गीत सिखाया। वो जदों इन्हां ने खत्म होएगा ना अगले सेशन तो पहला ना गाना जी हालेलुया। I'm trying to excite to see whether we can work on that song. Yes, amen, hallelujah. Now we want to share with us God's word today. आज आपके हुजूर खुदावंद का कलाम पेश किया चाहता हूँ। Let me just introduce myself again. I'm Pastor Jeff. मैं एक दफा फिर अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम पादरी जेफ है। I lead a church called Uzima. Uzima is Life Center. और मेरा जो चर्च जिसका मैं लीडर हूँ वो उज़ीमा है। उज़ीमा का मतलब है जिंदगी का मरकज। We are based in Nairobi City, that is in East Africa, in Kenya. और हम अफ्रीका में कीनिया की जगह जो नैरोबी है वहाँ पर हैं। I am married. I have 3 children. मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। I'll be celebrating 42nd birthday in 2 or 3 weeks from now. Yeah. Oh, a second birthday. 40. I'll be celebrating 42 Yours. in a month's time. और 1 महीने में मेरी 42वीं सालगिरह होगी जो हम मनाएंगे। Hallelujah. Young man. They say you are a young man. Yes, I am a young man doing this. Hallelujah. All right, now let's go into the word. आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ। And I want to share with us 3 things about who is the servant of the Lord. 3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि खादम क्या है, खुदा का नौकर क्या है, Who is the servant of the Lord? और कौन है जो खुदा का खादिम है, What it means to serve God. और What it means to serve God. खुदा की खिदमत करने का मतलब क्या है। I want us to read the book of Malachi, chapter number 2, verse 7. मेरे साथ निकाले मलाकी की किताब उसका 2रा बाब और उसकी 7वीं आयत। Malachi, the book of Malachi, the very last book of the Old Testament. पुराने अहदनामे की सबसे आखिरी किताब मलाकी की किताब और उसका 2रा बाब और उसकी जो 7वीं आयत है वो पढ़ी जाएगी। We are reading chapter number 2 and verse 7. 2रे बाब की 7वीं आयत। The Bible says, "For the lips of a priest should keep knowledge, and the people seek the law from his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts." और खुदा के कलाम में लिखा है और आप आए 7वीं आयत है, क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखे और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछे क्योंकि वो रब्बुल अफ़ाज का रसूल है। हालेलुया। The lips of the priest should keep knowledge. और जो काहिन है जरूर है कि उसके पास मार्फत हो, इल्म हो, And the people should seek knowledge from his mouth. और उसके मुंह से लोगों को मार्फत मिले, लोगों को इल्म हासिल हो। Anybody who seeks to serve God must have the knowledge of God with them. अगर कोई भी खुदा की खिदमत करना चाहता, खादिम बनना चाहता है कि जरूर है कि पहले उनके पास खुदा का इल्म और मार्फत हो। And people should find the law of God in the mouth of his servant. और जरूर है कि लोग खुदा के खादमों के मुंह से खुदा की शरीयत को पाएं। For the scripture says that servant is a messenger, is the messenger. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जो नौकर है वो पैगंबर है, पैगंबर।
Anyone who wants to serve God must see themselves as a messenger. और जरूर है कि जो कोई खुदा का खादिम होना चाहे उसका पैगंबर बने, पैगाम रसानी करने वाला। Now, every time we talk about a messenger, जब भी हम पैगंबर के बारे में बात करते हैं, we are talking about a man carrying a message from another. हम उस आदमी की बात करते हैं जो आदमी किसी दूसरे शख्स का पैगाम लेकर आगे ले जाता है। When they deliver the message, they do not deliver their own, rather the message they were sent. जब वो यकीन करते हैं, ईमान करते हैं, तो वो अपने आप पर नहीं बल्कि उस पैगाम पर ईमान रखते हैं जो पैगाम उनको दिया गया और उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। Now, many times people think they are serving God, but they are doing their own work. बहुत दफा ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा की वो अपनी खिदमत कर दे रहे हैं। It is possible for a preacher even like me to travel here to come do my own film in the name of God. मैं एक बहुत बड़ा खुदा का खादिम नहीं, लेकिन मैं प्रीचर होते हुए मैं भी यहाँ आके बजाय खुदा की खिदमत करने के अपना काम शुरू कर सकता हूँ, अपनी खिदमत शुरू कर सकता हूँ। But anybody who is going to serve God, और हर कोई anybody who is going to serve God, हर कोई जो खुदा की खिदमत करना चाहता है, must carry the message of God. जरूर है कि वो खुदा के कलाम का पैगाम लेकर आए, खुदा का पैगाम हो। And when people come to us, they do not come for our own ideas. और जब लोग तुम्हारे पास आते हैं खादमो, तो वो हमारे अपने ख्यालात लेने के लिए नहीं आते, But they come for the message of God. लेकिन बल्कि वो खुदा के कलाम का पैगाम लेने के लिए आते हैं। So the scripture says the lips of a priest should keep preserved knowledge. बस 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 इस बंदे को ले लो, तो दूसरा बस आप जाओ, आप जाओ। Right. Amen. आमीन, हालेलुया। So what we are saying is this. हम जो कुछ कह रहे हैं वो ये है, Everybody who is going to serve God हर कोई जो खुदा की खिदमत करना चाहता है must have the message from God. और जरूर है कि उनके पास जो पैगाम है वो खुदा की तरफ से हो। It is very possible to serve your own purpose and say you are serving God. बहुत मुमकिन बात है कि ऐसा होता है कि वो खुदा के बजाय अपना पैगाम और अपने सुनाना शुरू करते हैं और अपनी खिदमत शुरू कर देते हैं। So whether you are pastor, you are deacon, you are leader, you are singer, whatever you are, आप डीकन है, आप रहनुमा है, आप गाने वाले हैं मसीह के लिए, anyone serving God, anyone serving God, हर कोई जो खुदा की must खिदमत कर रहा है have the message from God. जरूर है कि उसके पास पैगाम भी खुदा की तरफ से हो। The lips of the priest should keep knowledge. और फिर जो काहिन है जरूर है कि मार्फत दूसरों तक पहुंचाए, And people should seek the law of God from his mouth. और उसके मुंह से लोग खुदा की शरीयत को सुने, उसके मतलबी हो। When people come to you, they must find the law of God in your mouth. जब लोग तुम्हारे पास आए तो आपके मुंह से खुदा की शरीयत निकले। When people come to us, they must find the very word of God. और जब खुदावंद के लोग हमारे पास आए तो खुदा का कलाम हमारे मुंह में उनको मिले। And let me tell you, that is not easy. लेकिन ये आसान बात नहीं है, That's not easy. ये आसान बात नहीं है भाइयों। To find what God is saying now is not easy. कि खुदा आज इस वक्त क्या चाहता है उसको जानना इतना आसान नहीं है। The world right now is suffering from a virus. आजकल एक वायरस चला है, दुनिया उस वायरस से बहुत ज्यादा मुब्तला हो रही है। And I can tell you there are many believers who are as worried as non-believers
yet in the church. और बहुत सारे जो ईमानदार लोग हैं वो भी दूसरी दुनिया की लोगों की तरह इस कोरोना वायरस से उसी तरह फिक्रमंद है, खौफजदा है जैसे दुनिया के लोग। How can we serve God and get worried with the world the same way? और किस तरह ये मुमकिन है कि हम खुदा की खिदमत करने वाले खुदा के लोग हों और हम खौफजदा हो जाए ऐसी बातों से। Everybody who serves God must have the message from God. हर कोई जो खुदा का खादिम है जरूर है कि खुदा का पैगाम उसके मुंह में हो। Let's look at Isaiah chapter number 6. यशायाह की किताब उसका 6वां बाब हम देखेंगे। Isaiah chapter number 6. यशायाह की किताब और उसका 6वां बाब। And let's see how Isaiah has a message from God. और मैं देखता हूं कि किस तरह यशायाह को खुदा का कलाम मिला। The Bible says in verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, पहली आयत, जिस साल में उज्जिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर थी हो गई। Verse 5. So I say, woe is me, for I am undone, because I'm a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. 5वीं आयत, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होठ नापाक हैं और निजस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफाज को देखा है। Verse 8. 8वीं आयत, Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then I said, here am I, send me. उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। Verse 9, and he said to me, go and tell these people, keep on hearing, do not understand, keep on seeing, but do not perceive. और 8वीं आयत में कहता है, नबी ने और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। Now Isaiah had the Lord, यशायाह के पास जिंदा खुदावंद था, and he says, I heard the voice of the Lord saying, और उसने जिंदा खुदा की आवाज को सुना। whom shall I send? और खुदा ने उससे कहा कि मैं किसको भेजूं And who will go for us? और हमारी तरफ से कौन जाएगा? That's the word he heard from God. Whom shall I send? और खुदा ने उसको कहा, ये कलाम था कि हमारी तरफ से कौन जाएगा And who shall go for us? और हमारी तरफ से कौन जाएगा। Now in that context, God is looking for a person. इस बात में हम देखते हैं कि खुदा एक ऐसे शख्स की तलाश कर रहा है। God is looking for a person to send. वो ऐसे शख्स की तलाश में है खुदा कि जिसको वो भेज सके। But that person being sent must go for the purpose of the sender. और वो अगर पादरी साहब है तो उसको जब भेजा गया है तो जिस मकसद के लिए उसको उसके मालिक ने भेजा है उस मकसद के लिए जाए। Let's say that again. हालेलुया। I will say, मैं दोबारा कहूंगा। Let's say that again. God is looking for somebody to send. खुदा तलाश में है कि वो किसको भेजे। God is looking for somebody to send. खुदावंद इस तलाश में है कि वो किसे भेजे। But the person being sent और जो शख्स वो भेजता है must go to do the will of the sender. तो जरूर है कि वो उसकी मर्जी जो बात है वो आगे लेके जाए। Let me give a simple example. मैं एक आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। Now we came to Pakistan to preach. हम पाकिस्तान में मनादी करने आए।
We didn't come to do shopping. We came to preach. हम इसलिए नहीं आए कि हम शॉपिंग करें, हम खुदा का कलाम सुनाने आए। We might go shopping, but that's not why we came. हो सकता है हम जाएं और शॉपिंग भी कर ले, पर मकसद ये नहीं हमारा आने का। When I go back to Nairobi, जब मैं नैरोबी में वापस जाऊंगा, I need to hear the question, how was the meeting, not the shopping? तो मैं वहां पर जब पहुंचूंगा लोग पूछेंगे किस तरह खुदा का कलाम मीटिंग सुनाया, कैसा रहा। वो ये नहीं कहेंगे कितने कितने शॉपिंग की खरीदिया। So who shall we send and who will go for us? किसको हम भेजें और हमारी तरफ से कौन जाएगा? It simply means who will go do our work, not their work. कौन वो होगा जो खुदा कहता है कि मेरा काम करेगा, अपना नहीं। And I can tell you there are many people doing their own work in मैं the आपको name of God. बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के नाम में तो हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना और अपनी ख्वाहिशों का काम कर रहे हैं। And may God have mercy on us. और खुदा हम पर फजल करे, रहम करे। It's possible to build a church for your name. ये हो सकता है कि आप कलीसिया के मेंबर हो, लेकिन आप बड़ी मशहूरी आस्ते। It's possible to have a big crowd so that you are famous. हो सकता है आपके पास बहुत सारा मजमा हो क्योंकि आप मशहूर हैं। It's possible to sing so that people can see you. और इसलिए हो सकता है आप अच्छा गाएं ताकि लोग आपकी अच्छी आवाज को सुने और आपको देखें। It's possible to serve in church so that people know your names and they know you are famous. हो सकता है कि ये भी मुमकिन है कि आप कलीसिया के अंदर खिदमत करें और सिर्फ अपने नाम और मशहूरी के लिए। Who shall we send? खुदा कहता है मैं किसको भेजूं And who shall go for us? और हमारी तरफ से कौन जाएगा? Who is going for us? कौन जाएगा हमारी तरफ से? You see, if you send Pastor Victor to Nairobi अगर तो आप पादरी विक्टर साहब को नैरोबी भेजते हैं and ask him to come and look for Pastor Charles Mutua, तो वहां पर पादरी चार्ल्स मतुआ को तलाश करके जरा देखें। and मुझे you भेजा जाता है pay his tickets and pay his accommodation for 2 months, और 2 महीने की रहाइश और टिकट भी दी जाती है, and then he come to Nairobi and spend the 2 months. और वो नैरोबी में आके 2 महीने रहता है। When he comes back in the airport, when you receive him back in the airport, जब वो पाकिस्तान वापस आता है 2 महीने के बाद और आप खुशामदीद कहते हैं एयरपोर्ट पर, now if you ask him, did you find Pastor Charles तो Mutua? आप जब उससे पूछते हैं क्या आपने पादरी मातुआ को तलाश किया, What would happen if this is the answer? अगर जवाब ये हो तो क्या होगा? Now you can say, oh, Nairobi is a great city. ओ वो भाई साहब बोले ओह बड़ा जबरदस्त कितना खूबसूरत है नैरोबी। There are so many animals near the airport. ओ बहुत सारे जानवर हैं जंगली, एयरपोर्ट के आसपास खूबसूरत है। There are very nice roads in Nairobi. और रोड बड़े खूबसूरत शानदार रोड है। The guys don't have hair in Nairobi. नैरोबी में लोग गंजे पे फिरते हैं। And then you ask him, did you meet Pastor Charles? आप कहेंगे अच्छा ये तो बताएं Did you meet पास्टर चार्ल्स से मुलाकात हुई? And he said, oh, the politicians. ओ वहाँ के सियासतदान, Oh, their money. ओ वहाँ पर बहुत पैसा है, Oh, their houses. उनके घर बहुत बड़े-बड़े। Would you not still ask him, did you meet Pastor Charles? आप कहेंगे भाई ये तो बताएं पादरी चार्ल्स साहब से आप मिले? If he finally say, well, I didn't see him, but the houses are great. ओ तो मैं वो पादरी साहब ने नहीं पादरी चार्ल्स से मेरी मुलाकात नहीं हुई, कार ना रखे बड़ा बड़ा शानदार कार है। Will he not have failed? क्या ये इंसाफ है? He will have failed. If he went to look for Pastor Charles, ये नाकाम हो गए आप उस काम में। he never met him, वो पादरी चार्ल्स साहब से तो मिले नहीं, but he saw big houses, he will have failed. लेकिन उसके बड़े घर को तो देखा तो फिर वो नाकाम हो चुके। That's what God is saying. Who will I send? But they go for my assignment, not theirs. ये कह रहा है कि खादमो तुम मेरी खिदमत करते हो, जो असाइनमेंट मैंने तुम्हें दिया है, मैंने भेजा है, क्या उसके लिए गए हो? May God have mercy on us. ओ खुदा हम पर रहम करे। Let me give you an example एक मिसाल देता हूँ आपको from the Bible. खुदा के कलाम से। How many people did Jesus raise from the dead?
आप ये बताएं कि यीशु ने मुर्दों में से कितने लोग जिंदा किए? यीशु ने, ये सवाल है। How many people did Jesus raise from the dead? कितने लोग यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किए? 3 people only. 3 लोग, सिर्फ 3। Lazarus, लाजरस Jairus' daughter, और यायर की बेटी and the son from the widow of Nain. और नाइन की बेवा का बेटा। I think Jesus should have raised more people. मेरा ख्याल है यीशु को और ज्यादा लोगों को जिंदा करना चाहिए। For example, खुद मिसाल के तौर पे Jesus should have raised John the Baptist. ये अच्छा होता कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु जिंदा कर देता। Why? क्यों? John the Baptist was a cousin, a brother. इसलिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का रिश्तेदार था। I mean, why bury John if Jesus is around? Raise the up. क्यों हम जब यीशु वहां मौजूद है तो यूहन्ना मर जाता है, उसे जिंदा किया जाए। If you are Jesus and your cousin died, would you not raise him? अगर आप यीशु होते, आपका कजन भाई को मर जाता तो पहला वो जाके जिंदा ना करते तुसी। I mean, would you not raise your cousin? I'm just asking a question. हाँ, मैं ये सवाल है, मेरा सवाल है कि क्या, I'm asking, मेरा ये सवाल है, भाई दसो, अगर तुहाडा कोई अजीज मारता तो पहला उन्होंने जी जिंदा कर देना जे तुहाडे को कुवत हुंदी। क्यों जी? Why didn't Jesus raise many people? क्यों यीशु ने बहुत सारे लोगों को जिंदा नहीं किया? Because इसलिए मेरे ख्याल में इसलिए he wanted people to stick to the message, not the miracles. वो चाहता था कि लोग जो वो मोर्चे करता है उन पर इतनी तवज्जो ना दे, उनसे बढ़कर वो पैगाम जो कलाम वो करता है उस पर तवज्जो दे। हालेलुया। The word of God, the word Jesus brought was more important than raising dead man there, another dead man there, another dead. It was more important they hear the message. यीशु मसीह के लिए और लोगों के लिए भी ये ज्यादा जरूरी नहीं था कि यीशु मुर्दों को जिंदा किया। एक औथे जिंदा करने वाले, चलो उधर चलिए, औथे भी एक मुर्दा जिंदा होना है, औथे भी, बल्कि जो कलाम यीशु मसीह करता था वो अहम था। And so Jesus says, I only do what I see my father doing. और यीशु कहता है कि मैं सिर्फ वो कुछ करता हूँ जो मैं अपने बाप को करते हुए देखता हूँ। And it's my prayer that each one of us और मेरी ये दुआ है कि हम में से हर कोई will seek to find out what is God doing. वो इस तलाश में लग जाए कि खुदा क्या कर रहा है और आपके वसीले क्या करना चाहता है। I was reading prophetic words in the beginning of the year. और इस साल के आगाज में मैं नबूवत की किताब नबूवत पढ़ रहा था खुदा के कलाम में से। And there is one minister who I respect who is a very good prophet. और एक जो खादिम है मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ और वो नबी है। And some of the things they are prophesied that God is saying is that there is going to be a big revival in these regions, that is Pakistan and other countries. वो नबूवत करने वाला जो है वो खुदा का खादिम ये नबूवत कर रहा था कि पाकिस्तान और एशिया के इस इलाके में खुदा एक बड़ी जबरदस्त बेदारी भेजने को है। Then there is going to be a huge revival in the area of Malaysia and Philippines, Indonesia and region there. मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन इलाकों में भी वो उसने नबूवत की कि खुदा एक बड़ी बेदारी भेजने को है। It simply means there's something God is doing in your country and in this neighborhood. इसका मतलब है कि खुदा आपके मुल्क में कोई अजीब काम कर रहा है, आपके जो हमसाए हैं उनके अंदर। And we must seek to find out what God is doing so that we do that. तो जरूर है कि हम पहले जाने, हम मार्फत हासिल करें कि खुदा क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, फिर हम वो करें। John chapter number 12 verse 26. दूसरा बाब यूहन्ना का और उसकी 26वीं आयत। John 12 verse 26. यूहन्ना दूसरा बाब और उसकी 26वीं आयत। The Bible says, if anyone serves him, let him follow me. And where I am, there my servant will be also.
If anyone serves him, my Father will honor. Chapter 2, John, and verse 12, verse 26. 46. Okay. 12. Just 46. 12. Yes. 12. 12वां बाब है। यूहन्ना उसका 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत। 12, 26. If anyone serves me, he let him follow me, and where I am, there my servant will be also. ठीक है। If anyone serves me, him my Father will honor. अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे बोले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। If anyone serves me, अगर कोई मेरी खिदमत करे, let him follow me. जरूर है कि फिर वो मेरी पैरवी करे, मेरे पीछे चले। हालेलुया, आमीन। If you want to serve God, अगर कोई भी खुदा की खिदमत करना चाहता है, if you want to serve God, Jesus say, you follow me. अगर आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं तो यीशु कहता है पहले मेरे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो। So let's assume I'm Jesus, you are the servant. ओके, देखिए ये फर्ज करें कि भाई जेफ जो है वो यीशु है और मैं खादिम हूँ। Jesus is saying, if anyone wants to serve me, यीशु कह रहा है अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे, let that person follow me. वो जरूर है कि वो मेरे पीछे चले, मेरी पैरवी करे। Let him follow me. मेरी पैरवी करे, मेरे पीछे चले। Anyone who wants to serve me, अगर कोई भी मेरी खिदमत करना चाहता है तो वो मेरे पीछे चले। let him follow me. हाँ, मेरे पीछे चले। But you know what many people are doing, including preachers? आपको पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं? They are doing something, वो कुछ कर रहे होते हैं, but they are on their own. लेकिन वो अपनी कुवत में खुद बखुद वो कर रहे होते हैं। So they are serving God, वो खुदा की खिदमत तो करते हैं, but they are doing their own thing. लेकिन वो अपनी बातें, अपनी चीजें कर रहे होते हैं। So my request you go home. Yeah, I will follow you. First, Jesus. I'm demonstrating. Now, मैंने कहा आपको मैंने फॉलो करना है, तो मैं तो खादिम हूँ। कहना अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं तो अनु फॉलो कर रहा हूँ। anyone follow me, I mean, if anyone, oh sorry, you are moving, sorry, you are moving, sorry. So we should do the other way around, but it's okay for now. You know, in our place, you don't send an old man, you don't send an old person. Now, so if anyone is going to serve me, Jesus is saying, let that person follow me. अगर कोई भी, यीशु ने कहा, अगर कोई भी मेरे खादिम होना चाहे तो पहले मेरी पैरवी करे। But there are people serving God. बहुत से लोग खुदा की पैरवी कर रहे हैं। They used to follow God. वो खुदा की पैरवी किया करते थे। And they used to follow God. वो पहले खुदा की पैरवी किया करते थे। But as they continued serving God, और जब वो मुसलसल काफी साल खिदमत करते रहे, they lost Him. तो फिर उन्होंने पैरवी करना छोड़ दिया। Should I go? So they were serving God, वो खिदमत कर रहे थे, but they lost Him. लेकिन वो पैरवी करना छोड़ दिया। So they are serving, वो खिदमत तो कर रहे हैं, but God is not there. लेकिन वहाँ यीशु नहीं है। यीशु तो थल्ले के होता है। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, the fact that I'm preaching ये हकीकत है कि मैं जब कलाम कर रहा हूँ, does not mean God is with me. इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा मुझको इस्तेमाल कर रहा है। The fact that I'm doing good work, और मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, it does not mean God is with me. इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा मेरे साथ है। How do you know God is with you? It's only by prayer and a ये कैसे relationship. आप जान सकते हैं कि खुदा तुम्हारे साथ है? सिर्फ घुटनों के बल दुआ के वसीले। You can do God's work without God. It's possible. आप खुदा का काम कर सकते हैं लेकिन बगैर खुदा के। But Jesus is saying, if anyone wants to serve me, और यीशु कहता है अगर कोई भी मेरा खिदमत करना चाहता है, let him follow me. तो जरूर है कि वो मेरे पीछे And चले। Jesus says, यीशु ने कहा so that where I am, ताकि जहां पर मैं हूं, that is where my
वहां पर मेरा खादिम भी हो। When I am, that's where my servant will be. मेरा खादिम भी वहीं पर हो, अलग नहीं। So if Jesus is in Hyderabad now, that's where my servant will be. अगर खुदावंद यीशु मसीह हैदराबाद में है तो जरूर है कि उसका खादिम भी वहीं पर हो। If God wants to use me here, अगर खुदा मुझे हैदराबाद इस्तेमाल then करना I must be here, not in Karachi. जरूर है कि मैं हैदराबाद में हूँ, कराची में नहीं। Let me say that slowly. आसानी से आहिस्तगी से मैं ये कहूँगा, I could be in Karachi now doing good God's work. हो सकता है मैं कराची में खुदा के लिए अच्छे काम, मैं अच्छी नेकियां कर रहा हूँ। But if Jesus want me in Hyderabad now, I would rather be here than be in Karachi there. तो अगर यीशु चाहता है कि मैं हैदराबाद में हूँ तो मैं उन नेकियों को भी छोड़ूंगा, तो कराची में नहीं बल्कि हैदराबाद में जहां यीशु मुझे चाहता है वहां पर होऊंगा। So Jesus is saying, where I am, there my servant will be. यीशु कह रहा है जहां मैं हूँ मेरा खादिम भी वहीं पर होगा। Let me read you two more scriptures and I'm दो finished. और आयत है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। Book of Acts, chapter number 4, अमाल की किताब और उसका चौथा बाब है and verse 13, 1-3. 13वीं आयत, अमाल 4:13। Acts chapter 4, verse 13. अमाल 4:13। Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled. And they realized that they had been with Jesus. जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। Someone say, "TK." ठीक है, बोलो जोर दी, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है बोलो, ठीक है, ठीक है, जरा इतना ठीक नहीं, जोर से बोलेंगे, ठीक है। When they saw how bold Peter was and John, जब उन्होंने देखा ये कि पतरस और यूहन्ना कितने दिलेर थे, जुर्रतमंद थे, and you know at this point John and Peter had healed a man. और इस वक्त जब उन्होंने ये देखा तो यूहन्ना और पतरस वो दोनों एक मोर्चा कर चुके थे और एक आदमी शिफा पा चुका था। And they were very threatened that they shouldn't preach in the name of Jesus. और लोग जो थे वो शराब के आलम वो नहीं चाह रहे थे कि यीशु का नाम लेकर मनादी करें। But Peter and John were very bold, very courageous. लेकिन पतरस और यूहन्ना बहुत दिलेर थे और वो यीशु का नाम लेकर मनादी When करते। the elders looked at them, और जब बुजुर्गों ने जो अशरा के आलम भी थे उन्होंने उनको देखा and noticed that these two guys are not powerful, they are not trained, they are not educated, they are not rich, they are not political, they are nothing. तो वो जो यहूदी लीडर थे उन्होंने देखा ना ये पढ़े लिखे हैं, ये नावाकिफ हैं, ये जाहिल हैं, इतने ये कुव्वत कहाँ से आई? When they looked at them, they realized that they had been with Jesus. उन्होंने अंदाजा किया, उनको देखा और उन्होंने ये अंदाजा किया कि ये यीशु के साथ रहे हैं। And that is my prayer for all of us. मेरी दुआ आप सबके लिए भी यही है। Can people look at your life and say, you have been with Jesus? क्या आप अपनी जिंदगी पर नजर करके ये कह सकते हैं कि आप यीशु के साथ रहे हैं? I preach and sing. Now, can people find me singing and say, that man has been with Jesus? क्या मैं जब वहां गा रहा होता हूँ या कलाम सुनाता हूँ तो यीशु जो है, यीशु के बारे में यीशु को लोग मुझ में देखते हैं और कह सकते हैं कि ये यीशु के साथ रहा है? When people find you serving in your church, can they say you have been with Jesus? जब यीशु लोग आपको देखते हैं आपकी कलीसिया में खिदमत करते हुए
तो क्या वो आप में यीशु को देखते हैं और ये जानते हैं कि आप यीशु के साथ रहे When हैं? they looked at Peter and John, they said, "These two men have been with me." लेकिन जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को देखा तो उन्होंने कहा ये दोनों यीशु के साथ रहे हैं। So this is my conclusion. Three things that each one of us need to और think ये about. मेरी जो है इख्तितामी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। Three things each one of us must consider. 3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ जो हम में से हर एक को करनी चाहिए। Number one, पहली बात, we must be available to Jesus. हमें जरूर है कि जब यीशु बुलाता है तो हम हाजिर हों। हम कहें हम हाजिर हैं। We must be available. हमें हाजिर रहना है। बात एकदम उस पर अमल कर रहे हैं। Let me tell you, this world is becoming busier and busier. आज की दुनिया जो है रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा मसरूफ होती जा रही है। But God is not talking to busy in the middle of their big business and running around and they are all over the places. No. खुदा ऐसे बिजनेसमैन, कारोबारी लोग जो अपने कारोबार में मसरूफ और बहुत ज्यादा मसरूफ है, उनको नहीं कह रहे। Let me sound not very good to Pakistani people. मैं अब जो बात करने लगा हूँ शायद पाकिस्तानी भाइयों आपको अच्छी ना लगे। Am I allowed? Yeah, you are. I'm allowed, eh? Yeah, Yes, yes. no worries. It's God. Give me my phone. मेरा फोन मुझे दे। Very many of us will have to take care of this. हमारे पास तकरीबन सबके पास अपने फोन हैं और हम इसकी हिफाजत अक्सर करते हैं, बड़ी हिफाजत कर रहे हैं। Can I be able to bad for a few minutes? The first time I came to Pakistan was 2013. जब मैं पहली दफा पाकिस्तान में आया तो वो 2013 का साल था And I came last year, 2019. और पिछले साल जब मैं पाकिस्तान आया तो 2019 साल था And I am back 2020. और आज अब मैं 2020 में भी यहाँ मौजूद हूँ And I'm likely to come back again 2020. और 2020 में ही मैं दोबारा वापस हो सकता आऊँ। But the number of people who cannot keep their phones off in charge in Pakistan is equal to the number of people who can't keep their phones off in Nairobi. Is equal. कहता है एक बात है कि पाकिस्तान ते नैरोबी एक गल जी उस इको जी Is equal. कि ये अपने जो मोबाइल फोन है उसको ऑफ करना जो है यहाँ भी बातों में कम है और वहाँ पे भी कम है। And I'm very big the people in Nairobi. जो नैरोबी में बहुत मसरूफ लोग होते हैं, You cannot talk to God and still have your phone on. ज़रूरी Not possible. कि बाद च बैठे हो खुदा दा कलाम है या गुफ्तगू हो रही है ना फोन ते भी दूजियां गल्लां लगियां ते मैसेज और दूजियां गल्लां भी चल रही हैं। I was preaching in Philippines in October. अक्टूबर में मैं फिलीपीन में कलाम सुना रहा था। They took me into a home to comfort some fellows who lost their father 1 year ago. वो मुझे घर में लेकर गए कि मैं एक आदमी से बात करूं who lost his father, Who had lost their father 1 year ago, so I एक साल पहले उसका बाप वो मर चुका था, वफात पा चुका था। But when I'm busy talking to them, the young fellows, जब उस नौजवान आदमी के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा था कलाम के बारे में, I am talking to them, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था they lost their father, और उनका बाप भी वफात पा but चुका है they cannot listen to me, they are here. क्योंकि वो अपने फोन ते लगा सी वो एवी गल उदों भी नहीं सुन पा रहे। Do you know how old was their father? वो पता है उसका बाप कितना बुजुर्ग था? I don't think more than 60 years. He must have been young. अब जवान ही था, 60 साल से भी कम उसकी उम्र थी उसके बाप की जिसकी डेथ हुई। And they are busy like this. तो बाप भी ताज़ियत हो रही है तो आपने फोन पे लगा है। Did they know my father is still alive? Your father? Yes, my father is alive. तो अनु पता कि पारी साहब दे वाले साहब जेड़े ने वो हयात ने पिछली बारी गल हुई सी। Do you know how old is my father? आपको पता मेरे वाले साहब कितने My बुजुर्ग हैं? father is 93 years old. मेरा बाप 93 साल का बुजुर्ग है। So now my father is alive, my phone is off. Their father is dead, they are on phone. जिदा प्यो जिंदा है ओदा फोन ऑफ है कलाम दे वक्त, जिदा प्यो मर गया है ओदा फोन ऑन है। So who needed the phone? Me or them?
क्या मुझे जरूरत थी जिसका बाप जिंदा है फोन की ताकि मैं प्यो ना गल कर सका या ओनू जिहदा प्यो ही मर गया? Let me tell you. As long as you keep this on as you are praying, Father, I thank you, I bless your name, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You even take a picture, thank you, Jesus. Thank you. आप समझ गए होंगे कि आप दुआ कर रहे हैं ते फोन वाले ही देखी जा रहे हैं कौन रख दो तुसी हालेलुया यीशु ते कदे कदे अपने मुंह दी तस्वीर भी ले लेनी है दुआ करदा किंजे दा लगना पिया। Now let me tell you, it looks like a joke, but check on Sunday in your own church. ये लगता है जैसे कि मजाक की बात मैं कर रहा हूँ, नहीं, कभी दुआ के दिन देखें कि चर्च में कई लोग, बहुत से लोग इस बात पे लगे होते हैं। Even in our church, I'm not accusing you people. Even मैं आपकी बात नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे चर्च में भी लोग ऐसे करते हैं। the meeting is going on, somebody say, hello. मीटिंग जो है वो चल रही है तो इस तरह हौली हौली गल्लां ते लगे। And you people are thinking God is going to wait for your hello and then you continue still. तो आप तुसी की समझ हो कि खुदा हुण इंतजार करे तो पहले मैं अपनी हेलो पूरी करना तो फिर खुदा मेरी फिर सुनेगा। And may God have mercy on all of us. ओ खुदा हम पर रहम करे। All of us. I'm not saying you or me. All of us. आप पर और मेरी बात नहीं, हम सब पर खुदा रहम करे। Is that problem here or am I just abandoned? No, it is there. Yeah, too, same thing. But it happens. But today, thank God, nobody is doing that. Because I was going to say about this. Anyway, the point is this: we must be available. बात ये है, उस तरफ आए, जरूर है कि हम खुदा के लिए हाजिर हों। Let me ask you. जब भी बुलाए। Let me ask you a simple question. Please. मैं आपको बड़ा सादा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। Let me ask you a very simple question. बड़ा सादा सवाल है। If somebody was called to see their prime minister, अगर you guys have a prime minister, you have a prime minister. या अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा हो, If Pastor Victor was called to see prime minister, अगर पादी साहब जो है वो would he be given by the prime minister in a day? वजीर आजम पाकिस्तान पूरे दिन से वो उनको कितना वक्त देगा? Can your prime minister give you a whole day? No DMs? No. Can he give you 6 hours? कि ये को पूरा दिन देगा? बच्चे 6 घंटे तो देगा ना? Oh, he can't. नहीं दे सकता। Can he give you 2 hours? चलो 2 घंटे तो दे चलेगा। I mean, you are passing by to just greeting. Hey, how are you doing? हाँ, तुसी चाप कर रहे हो और सिर्फ इस्लाम को आएगी। अच्छा, तो चल फिर हम। How long? कितनी देर? How long? कितनी देर? Maybe like some minutes. Let's make them 10 minutes. चलो 10 मिनट की गल करें। 10 मिनट? If you are Pastor Victor, अगर आप पादी विक्टर की जगह you are going to see the president और प्रेसिडेंट को आप सदर को or मिलना prime minister, और प्राइम मिनिस्टर and you have 10 minutes. और वजीर आजम ना मिलनी 10 मिनट ने साढ़े को। How many people would you take with you? आप कितने लोगों को साथ लेकर मिलने जाएंगे? How many people? क्योंकि 10 मिनट है, कितने लोगों को? How many people would you take with you? कितने अपने लोगों को साथ लेकर जाएंगे? खुद ही जाएंगे। No one. Yeah, जी। But most of the time we are praying, but somebody knocks the door, you go and open. You see the person, then you close the door. When you are praying, somebody calls you, look at your hand. ये अक्सर हम जब दुआ कर रहे होते हैं तो दरवाजा खटखटाया जाता है, दुआ करते हालेलुया हालेलुया करके ऐसे दरवाजा खोल ले, हाँ जी कौन है? अच्छा कोई ठीक है जी, फिर हालेलुया शुरू कर देंगे। We must be available to God. जरूर है कि हम खुदा के हजूर मुहैया हो, हाजिर हो जब वो हमें बुलाता है। I encourage brethren, let's मेरे भाई, give God precious time. मेरे भाइयों, अपना जो कीमती वक्त है वो खुदा को दे दे। Available to God. Number 2. और उसके हुजूर हाजिर होने के लिए हर लम्हा तैयार हो। Number 2. दूसरी बात, We must be consecrated to God. जरूर है कि हम खुदा के लिए मुकद्दस हो, अलहदा हो, खुदा के लिए बरगुज़ीदा हो, उसके लिए We must be set apart for God. हमें खुदा के लिए अलहदा होना है, अपने आप को खुदा के लिए अलहदा करना है। Let me give you a simple example. एक बड़ा सादा मिसाल देता हूँ। When King Nebuchadnezzar invaded Israel, जब नबूकदनेस्सर जो है वो इस्राएल पर हमला करता है, they took the Israelites as slaves.
और जब वो हमला करता है तो इसराइलियों को असीर गुलाम बनाकर ले जाता है। They went to the temple and collected gold and precious vessels of God. और वो जो है उन्होंने हैकल पर हमला किया और कीमती चीजें और तकदीस शुदा जो बर्तन थे अलग किए हुए वो भी उन्होंने ले लिए। And they carried the people and the vessels of God to Babylon. और खुदा के उन मुकद्दस बर्तनों को और लोगों को गुलाम बनाया और वो उनको ले गए। Now after King Nebuchadnezzar was dead, his son became the king. जब नबूकदनेस्सर मर गया तो उसका बेटा उसकी जगह बादशाह बना। And this king one day is having a party and enjoying life. और एक दिन वो जो बादशाह था वो पार्टी कर रहा था, खा पी रहा सी और बड़े मजे करने रहा सी अपने लोगों का। He was taking wine with his leaders, his wives, his concubines. They were having a party. और उसकी लौंडियां और उसके लीडर सबके साथ मिलकर वो शराब नोशी कर रहा है। And as they continued and were feeling nice and were drunk and were enjoying the party, वो मुसलसल जो है वो खुश हो रहे और शराब पी रहे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। this king remembered that there were some vessels taken from the house of God that were in Babylon. और वो उन बर्तनों में जिनको अलहदा किया गया था, मुकद्दस बर्तन हैकल के, उनमें भी शराब पी रहे थे। And the king sent and asked them, bring all those cups and those plates and spoons and knives. वो जो तमाम बर्तन हैं, जो चम्मच है, जो मुकद्दस वहाँ हैकल के हैं, वो लाओ। वो बादशाह कह रहा है So that we can use them and take our whatever, enjoy our party. हम अपनी पार्टी को एंजॉय करें, उसमें शराब नोशी करें और उनमें पिए मुकद्दस बर्तनों में। And they brought the vessels that were dedicated, set apart to God. और वो बर्तन जो सिर्फ खुदा के लिए मखसूस थे, तकदीस शुदा, वो उनको इस पार्टी के अंदर लेकर आए। Plates, spoons, प्लेटें, knives, चम्मच, हर तरह की छुरियां और कांटे, simple plates, और सादा प्लेटें, knives, और वो जो छुरी कांटे, spoons, वो चम्मच, nothing looking serious. They're just plates. और कुछ भी They're just spoons. कुछ भी उन्होंने उसको कदर नहीं दी। ये तो सिर्फ चम्मच है, ये तो छुरी कांटे हैं, कोई कदर नहीं की। They took them from the temple of God. So what? We can use them. हैकल से तो लाए हैं, तो क्या हुआ? ये भी बर्तन ही है, क्या बात है? But as soon as he began using the vessels, लेकिन जैसे ही खुदा के मुकद्दस किए हुए बर्तनों को बादशाह ने इस्तेमाल करना शुरू किया, a man's hand appeared on the wall. तो एक इंसानी हाथ दीवार पर जाहिर हुआ And he began writing. और उसने लिखना शुरू कर दिया। Your kingdom has been weighed. तुझे तोला गया, You are found less than you should. और तू कम निकला। And your kingdom is taken away. और your kingdom Your kingdom is taken away. और तेरी बादशाही तुझसे ले ली जाएगी। What was his sin? वो क्या, उसका गुनाह क्या था? He used the plates. उसका गुनाह था कि उसने मुकद्दस किए हुए बर्तनों को इस्तेमाल किया था। Every time something was given to God, it became holy. जब भी कोई चीज खुदा के लिए मखसूस हो जाती है, उसे दे दी जाती है, तो वो पाक और मुकद्दस बन जाती है। And everybody who wants to serve God must give themselves to God. हर कोई जो खुदा का खादिम बनकर उसकी खिदमत करना चाहता है, जरूर है कि वो अपने आप को खुदा के हवाले करे। When you give yourself to God, और जब अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देते हैं, you stop being common and you become holy तो unto God. आप कोई आम शख्स नहीं रहते, आप उसके मुकद्दस बन जाते हैं। God can fight for plates and cups and spoons अगर and खुदा utensils. उन मुकद्दस प्लेटों, कांटे, छुरी और चमचों के लिए जंग कर सकता है, God will fight for you. क्या खुदा तेरे लिए जंग ना करेगा? If God can fight for plates and cups, अगर वो इन प्लेटों के लिए, कांटों के लिए जंग कर सकता है, when you give yourself to God, my brother, और
मुकद्दस उनकी वजह से किसी की बादशाही जा सकती है। How much more when you give yourself to serve God? और जब आप अपने आप को उसको सौंप देंगे, आपके लिए वो क्या कुछ नहीं करेगा। Coronavirus will be nothing. कोरोना वायरस भाग जाएगा। Poverty shall be nothing. और कोरोना वायरस भाग जाएगा। Consecrated. और क्योंकि आप अलग किए हुए मुकद्दस लोग हैं। Every one of us needs to give themselves again to God. हम में से हर एक को जरूरत है कि दोबारा अपने आप पर गौर करें और दोबारा अपने आप को खुदा के हवाले करें। Let God know that you are viable for Him. खुदा को ये बताएं कि खुदावंद मैं तेरे लिए मौजूद हूँ, हाजिर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। And not only am I available to God, but to Him only. But To Him only. Only. I'm available to Him and Him only. मैं न सिर्फ खुदा के लिए हाजिर हूँ, बल्कि खुदा के सिवा किसी और के लिए हाजिर नहीं हूँ। Finally, आखिरी बात, the last one. आखिरी बात, We must all have the message of God. जरूर है कि अगर हम खादिम हैं तो हमारे पास खुदा का पैगाम हो। But you can never get a message from a person unless you are with them. और आप जब तक किसी के साथ रहे नहीं, रफाकत नहीं रखेंगे, उसका पैगाम किस तौर पर आप तक पहुंचेगा। When we are available, जब हम उसके लिए हाजिर हैं set apart for God, और उसके लिए हमें मुकद्दस किया गया, अलग हुए हैं, then we will receive His message. और फिर उस वक्त हमें वो अपना कलाम देता है। Amen. आमीन। Whether a pastor, a leader, a singer, a deacon, and जब पादरी, जो गाने वाला, कोई डीकन, कोई एल्डर, कोई लीडर, available, जब वो अपने आप को खुदा के लिए हाजिर करता है set apart for God, और उसके लिए अपने आप को अलग करता है, we will have the message. तो फिर वो हमें पैगाम दे देता है, कलाम दे देता है। Then the scripture will be fulfilled. फिर खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा होता है। Who shall I send? किसको मैं भेजूं? And who shall go? कौन है जो मेरी जानिब से जाएगा? Whom shall I send? मैं किसे भेजूं? And who shall go for us? कौन है जो मेरी तरफ से जाएगा?